Hello, good morning to all of you. A very warm welcome and very good morning to all of you on a very precious day of 15th August of our 75 Amrit Mahotsav of Independence. I hope that you all know the importance of the Independence Day in our life. Before going to start any words about the Independence, first I would like to congratulate and thanks, a special thanks to all those team members, all those teachers, all those non-teaching staff who have worked hard for the preparation of this independence. We are proud here to be gathered to celebrate this Independence Day. I know that all of you must know that our India got independence on 15th August 1947. Any of you who doesn't know when our India got independence? 15 अगस्त को आज़ादी नहीं मिली थी, सबको पता है? All of you know? Yes. So we have got our independence from the British rule, who ruled our country approximate 90 years. ठीक है? Our country became slave in 1958 after the last Mughal emperor. What was the name of last Mughal emperor? Anyone can tell me the last Mughal emperor's name? Any of you who know who was the last Mughal emperor from which the British entered our country in 1958? Almost 90 years of the British, the English, they ruled our country. The last Mughal emperor was Bahadur Shah Zafar II. Bahadur Shah Zafar II, who was well known as Zafar, and he died in the prison of the British jail in 1862. सन 1862 में वो अंग्रेजों के द्वारा कैद किए हुए कई सालों से जेल में थे और उनकी मृत्यु सन 1862 में अंग्रेजों की जेल में हुई. And from 1858, Bahadur Shah Zafar II, who was well known as Zafar, and he died in the prison of the British jail in 1862. सन 1862 में वो अंग्रेजों के द्वारा कैद किए हुए कई सालों से जेल में थे और उनकी मृत्यु सन 1862 में अंग्रेजों की जेल में हुई. And from 1858 to 1947, we were enslaved by the British rule, and ultimately, with the effort of our many of freedom fighters, we got our independence on 15th August 1947. During the whole height of our freedom, many of our renowned personalities became martyrs. कई लोग शहीद हुए और कई लोग Hello. Many of our freedom fighters got martyred. कई लोग शहीद हुए. उनमें से बहुत सारे मुख्य नाम शहीदों के हैं. Any of you can name few of the martyrs. कुछ शहीदों के नाम किसी को पता है? Can you name please 2-3 शहीद जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने बहुमूल्य जीवन को बलिदान दिया? वैसे कई शहीदों के नाम हैं. हम लोग कितने थक जाएंगे. Any of you can name four शहीद के नाम.
Mangal Pandey, Ashfaqullah, Bismillah Khan, and many more. You count n number of persons who sacrificed their life for the freedom of our country. So we have not to forget that this 15th August is very important day for us. And without fail, every Indian should feel pride to be a part of this celebration of 15th important day for us. And without fail, every Indian should feel pride to be a part of this celebration of 15th August till the last breath of our life. जीवन की आखिरी सांस तक हम लोगों को ये दिन मनाना है, बिना भूले हर क्षमता में अपनी अपनी कैपेसिटी में एवरी इंडियन हैज टू बी ए पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन. अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो यू ट्राई टू बी ए पार्ट ऑफ स्कूल सेलिब्रेशन. अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो यू ट्राई टू बी ए पार्ट ऑफ योर कॉलेज सेलिब्रेशन. अगर आप कहीं रहते हैं तो वहाँ की सोसाइटी में अगर सेलिब्रेशन हो रहा है RWA की तरफ से तो वहाँ का एक हिस्सा बनिए. अगर कहीं नहीं है तो आपके आसपास के कम्युनिटी हॉल में होता है, कई बार किसी पार्क में झंडा तोलन होता है. तो हर हालत में वी हैव टू बी ए पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन व्हिच वी हैव टू मेक द कमिटमेंट. आप दूसरे कई दिन मनाते हैं साल में, कोई बर्थडे मनाता है, कोई मैरिज एनिवर्सरी डे मनाता है, कोई वैलेंटाइन डे मनाता है, कोई रोज डे, कोई कितने दिन होते हैं. दोज डेज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. बट अगर आपका वैलेंटाइन डे छूट जाए तो कोई बात नहीं है, आपका कोई और दिन बर्थडे छूट जाए तो कोई बात नहीं है. बट वी एज एन इंडियन हैज टू बी वेरी प्राउड टू बी ए पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन एवरी ईयर without fail. And why we celebrate this day? To remember for those who sacrificed their life, those who fought for the freedom of our countries, including many of the prominent personalities in which Jawaharlal Nehru, our father of nation, Mahatma Gandhi, Maulana Abul Kalam Azad, and many of the renowned personalities, Patel. So you can count n number of persons who fought for the freedom of our country, and due to those fighting, we got the independence of our country on 15th August 1947. लोग हर साल इसको मनाएंगे, हर हालत में मनाएंगे, हर स्थिति में मनाएंगे. हर इंडिविजुअल अपनी अपनी कैपेसिटी से देश के उन वीर जवानों को याद करेगा, उनकी कुर्बानियों को याद करेगा. वो कुर्बान नहीं हुए थे जिन्होंने अपनी मेहनत से देश की आज़ादी दी, उनको याद करेगा. और इस पे बहुत सारी आज़ादी के लक्ष्य लोग हर साल इसको मनाएंगे, हर हालत में मनाएंगे, हर स्थिति में मनाएंगे. हर इंडिविजुअल अपनी अपनी कैपेसिटी से देश के उन वीर जवानों को याद करेगा, उनकी कुर्बानियों को याद करेगा. वो कुर्बान नहीं हुए थे जिन्होंने अपनी मेहनत से देश की आज़ादी दी, उनको याद करेगा. और इस पे बहुत सारी आज़ादी के लक्ष्य पे शहीदों के नाम पे बहुत सारी चीज़ें लिखी गई, कई कविताएं लिखी गई, कई नज़में लिखी गई, कई चीज़ें लिखी गई. इसमें से कुछ लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ. जब देश में थी दिवाली, खेल रहे थे वो खून की होली. जब देश में थी दिवाली, खेल रहे थे वो खून की होली. जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली. ये उन शहीदों के नाम है. इनमें भगत सिंह, आप अंदाज़ा लगाइए कि जब वो इतने छोटी उम्र में उन्होंने ऐसी लाइनें लिखी देशभक्ति के नाम पे, जिसको आज भी पढ़ने के बाद हम लोगों के रोए खड़े हो जाते हैं. उन्होंने लिखा कि मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ़ है मेरे कलम, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ़ है मेरे कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो भी इनकलाब लिख जाता है. Lines were written by Shahid Bhagat Singh in his very early age of 18-17 years old.
अब आप उनकी जज्बात समझिए। उस वक्त आज से लगभग 75 साल पहले, 80 साल पहले उन्होंने ये लाइन लिखी और हम सबको इस दिन पर नाज होना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, रिलीजन, एनी स्टेट, एनी। और किसी शायर ने एक बेहतरीन शेर कहा है कि क्यों ना हो इस वतन की मिट्टी से मोहब्बत हमें, क्यों ना हो इस वतन की मिट्टी से मोहब्बत हमें, जाना है पेशानी पर खाक लगाकर जन्नत हमें। क्यों ना हो इस वतन की मिट्टी से मोहब्बत हमें, जाना है पेशानी पे खाक लगाकर जन्नत हमें। तो इस खाक का मतलब होता है मिट्टी। इट इज ए उर्दू वर्ड। खाक मिट्टी को कहते हैं, सॉइल को। कुछ इसी तरह से और बहुत सारी अच्छी अच्छी लाइनें लिखी गई जिसमें तड़पती, कुछ इसी तरह से और बहुत सारी अच्छी अच्छी लाइनें लिखी गई जिसमें तड़पती हेलो तड़पती धूप में मुस्कुराते हैं हम, प्रेमिका की याद में गुनगुनाते हैं हम। माँ का आशीर्वाद, पिता का प्यार याद आता है, लेकिन मातृभूमि की सेवा में झुक जाते हैं हम। खाते खाते गिरते चले जाते हैं हम, वजन धोते धोते तंग हो जाते हैं हम। सीनियर का आदेश, पिता का साल याद आता है, लेकिन मातृभूमि की सेवा में झुक जाते हैं हम। बंद मुंह खुले कान से बम सह जाते हैं हम, चाहे जैसा हो भोजन खा जाते हैं हम। साथी का प्यार, अपनों का दुख याद आता है, लेकिन मातृभूमि की सेवा में झुक जाते हैं हम। पेंशन करते करते अपनी जीवन बिता देते हैं, हर कोई काम हो वर्किंग समझ के करते जाते हैं हम। वर्दी की इज्जत, बच्चों का भविष्य याद आता है, लेकिन मातृभूमि की सेवा में झुक जाते हैं हम। अब आप इनसे समझ सकते हैं कि ये डे 15 अगस्त कितना इंपॉर्टेंट है हम लोगों के सामने। इसी शब्दों के साथ हम लोग एक वचन करते हुए एक बार फिर आप सभी बच्चों का, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल, सभी टीचर स्टाफ, इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए हम लोग एक शपथ लेते हुए इस अपने शब्दों को पर विराम देता हूँ कि भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। आज़ादी की ये खुशियाँ मनाकर लो ये शपथ कि बनाएंगे हम देश भारत को और भी महान। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। जय हिंद।